فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یقیناً وہ لوگ جو بے حیائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ جانتا ہے اور تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنوں کو ان تمام اعمال سے منع فرمایا ہے جو برے ہیں اور اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں۔ انہیں معصیت اور نافرمانی کہا جاتا ہے۔ ہر ایک گناہ کی اور معصیت کی اپنی اپنی شناعت ہے، قباحت ہے اور برائی اور گندگی ہے، لیکن ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو بہت ہی زیادہ قبیح اور برا ہے اور شریعت نے اس کی قباحت، شناعت اور برائی اور گندگی کو خوب واضح کیا ہے، وہ گناہ زنا کا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا، واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی انسان یا کوئی مخلوق جو ہے وہ غیرت کھانے والی نہیں ہے جتنی غیرت اللہ تبارک و تعالی کو اس بات سے آتی ہے کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی جو ہے وہ زنا کرتی ہے۔ فرمایا یہ وہ ایسا جرم ہے، کائنات میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اس جرم کے اوپر جو ہے وہ غیرت کھاتے ہیں اور اسے غصہ آتا ہے اور وہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کا غضب جو ہے وہ جوش مارتا ہے۔ یہ اس قدر قبیح اور شنیع جو ہے وہ گناہ ہے۔ لیکن افسوس کہ جس قدر یہ گناہ قبیح ہے، جس قدر یہ گناہ برا ہے، جس قدر یہ جرم گندا ہے، ایسا جرم ہے کہ بسا اوقات انسان اچھی محفل میں زبان پر اس کا نام لانا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اس کی اتنی برائی کے باوجود غیر مسلم کے معاشرے میں نہیں بلکہ امت مسلمہ، مسلمانوں کے معاشرے میں، پاکستان جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے عوام میں یہ گناہ جو ہے وہ اتنا زیادہ عام ہے کہ کوئی دن، کسی دن کا کوئی اخبار، کوئی میگزین، کوئی مجلہ، کوئی ذریعہ ابلاغ اور نشریات، فیس بک، نیٹ، ٹویٹر اور واٹس ایپ، جتنے بھی یہ ذرائع ابلاغ و نشریات ہیں، ہر کسی پہ ہر روز کہیں نہ کہیں یہ خبر ہمیں ضرور نظر آتی ہے، آج فلاں چودھری کے آفس میں، آج فلاں کالج میں، فلاں یونیورسٹی میں، آج فلاں ہسپتال میں اور فلاں ڈاکٹر کے کلینک پہ، آج فلاں پارک میں، آج فلاں جگہ اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ عورتوں کو جنسی تشدد کا اور استحصال کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ آج یہ واقعہ ہوا، آج یہ واقعہ ہوا، آج اتنی معصوم جانوں کے ساتھ درندگی کا ثبوت دیا گیا۔ یہ یورپ کا میڈیا نہیں بتلاتا، پاکستان کا اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان جو ہے اس کا میڈیا ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں فلاں جگہ پہ یہ گندگی دکھائی گئی،
حالانکہ شریعت نے کس قدر اس کی قباحت اور شناعت اور اس کی برائی اور اس کی گندگی کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، مومن اور نیک اللہ کے بندے جو ہیں وہ کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ کسی ناحق جان کو قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ شرک کے بعد اور قتل کے بعد تیسرا سب سے بڑا جرم جو ہے یہ زنا کا ذکر کیا کہ مومن مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے یہ زنا نہیں کرتے۔ پھر کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو بندہ بھی یہ جرم کرتا ہے اسے جہنم میں داخل کیا جائے، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کے لیے دگنا اور تگنا اور ڈبل عذاب جو ہے وہ کیا جائے گا، اور وہ جہنم میں ذلیل ہو کر رسوا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا۔ اس قدر اس کی شناعت ہے۔ اور کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، لوگوں بے حیائی بے شرمی اس کے کام جو ہے اس کے ظاہری ہیں باطنی ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً یہ بے حیائی کا گندا جرم ہے اور برا عمل ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کتنے مقامات ہیں صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ زنا کی قباحت اور شناعت کو جو ہے وہ بیان کیا، اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت بندہ ایماندار ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا ایمان اس کے سینے سے اس کے دماغ سے اس کے قلب سے نکال لیا جاتا اور چھین لیا جاتا ہے۔ جس وقت انسان جو ہے یہ جرم کرتا ہے اگر اسی حالت میں وہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ مسلمانی کی موت نہیں مرتا بلکہ کافری کی موت مرتا ہے۔ فرمایا دوسری حدیث میں ان العبد اذا زنا خرج منه الایمان، جب انسان جو ہے وہ زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ یہ کس قدر جو ہے وہ کبھی اور گندا اور برا جو ہے وہ جرم ہے، جس کا گناہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جنت اور جہنم کی آپ نے سیر کی، آپ فرماتے ہیں مجھے جبریل امین علیہ السلام ایک جگہ پہ لے کر گئے، وہاں پہ اتینا حتی اتینا علی التنور او مثل التنور، ہم ایک جگہ پہ گئے وہاں ایک تندور جیسی جگہ تھی، تندور تھا یا تندور نما جگہ تھی، اعلاها ضیق واسفلها واسع، اس کا منہ بڑا تنگ تھا لیکن نچلا حصہ بڑا وسیع تھا۔ فطلعنا فیہ، ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا، فاذا هم رجال فاذا هم فیہ رجال ونساء عورات، اس میں ہم نے دیکھا برہنہ عورتیں تھی اور برہنہ مرد تھے، اور کہا ان کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں آگ کے گولے چھوڑتے تھے، جب وہ پھٹتے تھے تو وہ اوپر کو آتے اور قریب تھا کہ وہ جہنم سے باہر نکل جائیں، لیکن اوپر آنے تک جو ہے وہ گولا بجھ جاتا، اور ایک روایت میں ضوضو، وہ اس وقت شور شرابہ کرتے اور آوازیں اور چیخیں نکالتے اور پھر جو ہے وہ جہنم کے نچلے گڑھوں میں جو ہے وہ گر جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حدیث کے آخر میں جا کر جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے ایک خاص طبقے میں رکھا ہوا ہے اور ان کو ایک خاص قسم کا جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ خواہش رکھی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت عمل نکاح کا شادی کا رکھا ہوا ہے، شریعت نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فوراً ان کے ساتھ اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر نسل انسانی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلایا اور آج تک یہ شادی کا پاکیزہ مبارک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔
जिन लोगों ने अपनी इफ्फत और अपनी असमत की हिफाजत करना होती है वो वक्त पे शादी करते हैं और शादी के जरिए अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हैं। शरीयत ने कहा लोगों शादी किया करो, इससे नजरें झुक जाती हैं और इंसान की इज्जत की हिफाजत होती है। ये बुनियादी किरदार है। लेकिन जब इंसान शरीयत की नाफरमानी करता है और शरीयत के बताए हुए उसूलों को छोड़कर सीधा रास्ता और सिराते मुस्तकीम को छोड़कर गलत रास्ते को इख्तियार करता है, फिर वो इंसान नहीं रहता, वो दरिंदा बन जाता है, वो डंगर और जानवर बन जाता है, गधा बन जाता है, खंजीर बन जाता है। ये काम खंजीरों के हैं, ये काम जो है वो इंतहाई गलीज किस्म के जानवरों के हैं, इंसानों के नहीं है। और जो इंसान होते हुए ऐसा करता है वो जानवर नहीं बल्कि जानवरों से भी नीचे जो है वो गिर जाता है। ये कबाहत है, ये शनाअत है। लेकिन ये वजह क्या है, आखिर होता क्यों है ये ऐसा? हमारे ही मुआशरे में ऐसी बुराई आम क्यों है, इतनी गंदगी जो है वो आम क्यों है? उसके हम खुद सबब, उसका हमारा मुआशरा खुद सबब है। बीमार हुए थे जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, जिसकी दवाई से इंसान बीमार होता है वहीं से जाकर दवाई लेता है। ये कहां से शिफा मिल सकती है? जिन चीजों से इंसान को बीमारी लगती है वही चीजें खाता है और कहता मुझे शिफा नहीं मिलती, कैसे मिल जाएगी? ये बीमारियां हमने खुद जो है वो पाल रखी हैं। शरीयत ने हमारी खूब रहनुमाई की है। शरीयत ने कुरान मजीद में कहा, नंबर 1, लोगों जमाना जाहलियत की तरह औरतों को बनाओ संगार करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए नबी, इन बीवियों को, औरतों को कह दीजिए ये अपने घर में ठहरी रहें, बाहर जाने की इनकी कोई जरूरत नहीं है। मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने बाहर जाने के लिए पैदा किया। आज मर्द घर में आराम करते हैं और औरतें बाहर में जाती। मर्दों को जो है वो आराम का मौका दिया जाए और चूड़ियां पहना दी जाए और दुपट्टे जो है वो दे दिए जाएं, और औरतों के दुपट्टे उतार कर और चूड़ियां उतार कर उनको मैदान में जो है वो अमल के लिए लाए। कहा नहीं, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ये कुरान मजीद का हुक्म है। और ताना ये दिया जाता है ये तो दकियानूसियत है, ये तो बुनियाद परस्ती है, ये तो पुराने जमाने की कोई बातें और किस्से कहानियां हैं। पहले लोगों ने भी कुरान मजीद का और अल्लाह ताला की किताबों का मजाक उड़ाया और अजाबों में तबाह बर्बाद कर दिए। और आज भी कुरान मजीद का मजाक उड़ाने वाले यूरोपियन तो है ही हैं, अंग्रेज तो है ही हैं, हमारे नाम निहाद मुसलमान भी हैं और अक्सरियत उसमें शरीक है। ये क्या बात हुई? औरत को दुपट्टा दे दो, औरत को जो है वो बुर्का दे दो, औरत को नकाब डाल दो, औरत को जो है वो घर में बंद कर दो, ये कैद करना, ये कौन सा इस्लाम है? इस तरीके से जो है वो मजाक किया जाता है। ये कुरान मजीद है। वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरतों से कहिए वो घर में ठहरी हैं और जमाना जाहिलियत का बनाओ संगार ना करें और बनाओ संगार करके बाहर ना निकलें। लेकिन अफसोस, आज की माँ, बहन, बेटी, बहू, बीवी वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं इस बात को कबूल कर लूं। मुझे तो बाजार में जाना है, मुझे तो बनाओ संगार करना है, मैं तो बाहर निकलना है और बन संवर कर निकलना है, बन ठन के जो है वो निकलना है। तो फिर किसी को ताना क्यों देते हैं, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया? ये आज हमारी इज्जत को जो है वो किसने तार तार कर दिया? वालिदैन फिर चीखते हैं, फिर मीडिया जो है वो वावेला करता है, ये कैसे इंसान है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गवर्नमेंट कहती है हम ऐसे जराइम पे काबू नहीं पा सके हैं। कैसे पा सकेंगे जब हम खुद ही तैयार नहीं हैं इस मामले को कंट्रोल करने के लिए? तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई ऐसी दवा नहीं है इसकी। शरीयत कहती है औरतों को कहिए घर में ठहरें, जरूरत के तहत बाहर निकलें। जब बाहर निकलें तो बनाओ संगार करके बाहर ना निकलें, पर्दा करके निकलें, अपने आप को छुपा कर निकलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को घर में ठहरने का हुक्म दिया, पर्दा करने का हुक्म दिया, लेकिन कज़ाए हाजत के लिए औरतों को बाहर जाना पड़ता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह, इनको मना कर दें। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, ये जरूरत है उनकी, जरूरत के लिए वो बाहर जाए। जितनी जरूरत है उतनी जरूरत को पूरा करें, पर्दे का एहतमाम करें, मर्दों से जो है वो इख्तिलाफ ना करें और घर में वापस आ जाए। शरीयत जो है वो खाम खाई नाजायज पाबंदियां नहीं लगाती, लेकिन जो पाबंदी लगाती है उसके अंदर हजारों हिकमतें और हजारों फायदे होते हैं। आज हमने उस हिकमत को सामने नहीं रखा और कहा नहीं नहीं, औरत को जो है वो बाजार में निकलना चाहिए,
اور जो है वो बंद संवर के निकलना चाहिए, तो फिर उसका नतीजा तो यही निकलेगा जो निकल रहा है, उसका नतीजा कोई दूसरा नहीं निकल सकता। शरीयत ने इख्तिलात से, ये जो है वो तबर्रुज से जो है वो मना किया, और हदीस में भी इसकी वजाहत की। आपने फरमाया सिनफान मिन अहलिन नार लमा रहमा बाद, दो ग्रोह जहन्नमी ऐसे हैं मैंने अभी तक उनको देखा नहीं। उनमें से एक ग्रोह निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदना रीहाहा व इन्न रीहाहा लतूजदु मिन मसीरति 500 आमिन औ कमा काला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो ग्रोह, उनमें से एक ग्रोह उन औरतों का है जो लिबास पहने हुए हैं लेकिन फिर भी नंगी हैं, लिबास पहनने के बावजूद वो फिर भी बरहना है। कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो खुद भी मर्दों की तरफ झुकती हैं, माइल होती हैं, और मर्दों को भी अपनी तरफ माइल करती हैं और झुकाती हैं। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर बुख्ती ऊंटों की कुहानों की तरह उभरे हुए हैं। ये जूड़ा बनाकर बाहर निकलना, शरीयत ने इसको जानी औरतों का वसफ करार दिया। कहा उनके सर जो हैं ऊंट की बुख्ती ऊंटों की कुहानों की तरह बुलंद हैं। ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वला यजिदना रीहाहा, ये औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। व इन्न रीहाहा लतूजदु मिन मसीरति 500 आमिन, जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से आना शुरू हो जाती है, लेकिन इन औरतों को जो है वो अल्लाह तबारक तआला जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर। कहां है वालिदैन, कहां है सरपरस्त, कहां है औलिया, कहां है जिम्मेदार अफराद, कहां है वो बेटियां और माएं और बहनें जिनकी निगाहें जो है वो शर्म से झुक जाती हैं और वो शरीयत के हुक्म पे आमन्ना व सद्दकना कहती हैं, कोई मानने के लिए तैयार। आज बार बार कहा जाता है कि आप ये जूड़ा बनाकर घर में तो बैठ जाएं, लेकिन बाहर निकलने वक्त अपने सर को नीचे कर लें। नहीं जी, हमें पसीना आता है, हमें ये होता है, हमें वो होता है, हमारी प्रॉब्लम है, हमारी सांस बंद हो जाती है नकाब करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। शरीयत ने नहीं कहा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, शरीयत ने कहा आप बेहयाई और बुराई के कामों से बच जाएं, नहीं करेंगे तो बेहयाई में लुट जाएंगे, और जब इज्जत तार तार हो जाएगी फिर रोने का, फिर पछताने का कोई फायदा, फिर चीखने का और फिर वावेला करने का जो है वो कोई फायदा। ये शरीयत ने कहा, ये शरीयत ने कहा कि लिबास पहना हुआ है लेकिन बरहना है, या तो इतना बारीक लिबास है वहां से आजाद जो है वो जाहिर होते, या इतना फिट और तंग लिबास है वहां से आजाद जाहिर होते। उस बुरके का क्या फायदा, वो बुरका तो लिया हुआ है लेकिन वो लिबास से ज्यादा खूबसूरत है, वो लिबास से ज्यादा जाज़बे नजर है, ऐसे बुरके का क्या फायदा। औरत वैसे खूबसूरत ना हो लेकिन लिबास और बुरका इतना खूबसूरत पहन ले, हर बंदा नजरें उठा उठा कर जो है वो देखता है। ये शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। शरीयत कहती है अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन लियजिदु मिन रीहिहा फहिया जानिया फहिया जानिया। फरमाया जो औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलती है और किसी कौम के पास से गुजरती है ताकि उनको उसकी खुशबू आए, कहा ये औरत जानिया है, ये औरत जानिया है। औरत को खुशबू लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज कौन माँ बहन और बेटी है जो बगैर खुशबू के जो है वो बाहर जाती। कहा उनकी खुशबू रंग वाली है, उनकी खुशबू खुशबू वाली नहीं है जो हवा में फैल जाती है और उड़ती है। मर्द को रंग वाली खुशबू से मना किया गया और उसको फैलने वाली खुशबू लगाने का इजाजत दी गई, और औरत को कहा गया रंग वाली खुशबू लगाए, क्रीम लगा ले, पाउडर लगा ले, सुर्खी लगाएं, लेकिन खुशबू वाली चीज ना लगाएं जिसकी स्मेल जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो वो एड़ियां उठा उठा कर जो है उसको देखे। शरीयत ने इससे मना किया। नंबर 2, दूसरे नंबर पर शरीयत ने कहा गैर महरम मर्दों से खलवत इख्तियार ना करें, गैर महरम मर्दों से खलवत इख्तियार ना करें, तबर्रुज भी ना करें, ज़ेबो ज़ीनत भी इख्तियार ना करें, और नंबर 2 ये मर्दों से खलवत भी ना इख्तियार करें। क्यों? आपने फरमाया ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइमरातिन इल्ला काना सालिसुहुम शैतान। कोई मर्द जब किसी गैर महरम औरत से खलवत इख्तियार करता है तो तीसरा जो है उनका शैतान होता है, तीसरा उनका शैतान होता है।
आज मंगनी हो जाती है, मंगनी से कुछ रिश्ता कायम नहीं होता। अभी मंगनी भी नहीं होती, नहीं जी लड़के और लड़की को मिलने दीजिए ताकि अपने एक दूसरे को जो है वो जान पहचान सके। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जान पहचान करने का हुक्म नहीं दिया, शरीयत ने ये जान पहचान करने का हुक्म नहीं दिया। अभी कोई रिश्ता नहीं है, वो कजन है, वो मामू की बेटी है, वो चचा की बेटी है, वो ताया की बेटी है, वो जो भी है वो गैर महरम है, उसके साथ खलवत इख्तियार करना जो है वो जायज नहीं। कहा कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई इख्तियार करता है, इल्ला कान सालिसुहुम शैतान, उनका तीसरा जो है वो शैतान होता है। तीसरा अल्लाह नहीं होता, तीसरा वहां पे शैतान होता है जो उनको गुमराह करता है और राह रास्त जो है वो उठाता है। आसल ने फरमाया, पूछा गया या रसूलल्लाह अफरअयतल हम, या रसूलल्लाह देवर के बारे में क्या ख्याल? देवर और भाभी। कहा या रसूलल्लाह देवर के बारे में क्या ख्याल है? कहा अलहम वल मौत, देवर तो मौत है, सारी खराबी और सारी बुराई तो यहीं से पैदा होती है। कहा किसी घर के फर्द को ये कहकर ये घर का फर्द है कोई मसला नहीं, औरत के साथ जो है वो खलवत इख्तियार करे? कहा नहीं, जायज नहीं है। जो उसकी महरम है उसी के साथ खलवत इख्तियार करे, जो उसकी बीवी है उसी के साथ खलवत इख्तियार करे, और किसी के साथ कमरे में खलवत इख्तियार ना करे। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, मशहूर वाकया आपने कई दफा सुना। आप इत्काफ में बैठे हुए थे, वो बातचीत करने के लिए आई, आपसे बातचीत की, जाने लगी तो रात का अंधेरा छा गया। आपने कहा सफिया ठहरो, मैं तुम्हें छोड़ के आता। इत्काफ से बाहर निकलना जायज नहीं है, लेकिन मजबूरी की खातिर इंसान निकल सकता है। ये मजबूरी थी, कोई साथ में नहीं था, आप निकले उसको घर छोड़ने के लिए। रस्ते में दो सहाबा से मुलाकात हो गई, उन्होंने सलाम कहा और गुजर गए। थोड़ा सा आगे गए तो आपने कहा ठहरी ठहरी बात सुनी। उनको बुलाया और कहा जानते हो ये मेरी बीवी सफिया है। सहाबा कहने या रसूलल्लाह क्या माजरा है, आप ये क्यों हमें क्यों बता रहे हैं, हमें मालूम है। कहा नहीं, इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम कमजरत दम, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, उसकी रगों में खून की तरह गर्दिश करता है, और मुझे डर है कि कहीं यक़ज़िफ़ फ़ी क़ुलूबिकुमा, तुम्हारे दिलों में कोई गलत वसवसा ना डाल दे। एक तरफ नबी हैं, एक तरफ इत्काफ में बैठे हुए हैं, और एक तरफ जो है वो बाजारों में रात को पता नहीं चलता तो औरतों के साथ नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है वो जा रहे। शैतान ये वसवसा डाल दे, वो देर नहीं लगाता। हजरत आयशा के ऊपर इत्तिहाम नहीं लगाया, और बहुत सारे लोग जो है वो फिर गए, और बहुत सारे लोगों के जहनों में वसवसा आ गया। हो सकता है अभी वो भी इंसान है, तो कहा ये भी इंसान है। कहा ये वसवसा शैतान डाल सकता है, इसलिए जान लो ये मेरी बीवी है, जरूरत के तहत मैं इसको घर छोड़ने जा रहा। ये इस कदर जो है वो इस्लाम हमें एहतियात का हुक्म देता है कि खलवत ना इख्तियार करें, वगरना शैतान दूसरे लोगों के जहन में वसवसे डालता है और उनके जहन में भी वसवसे डालता है। लेकिन इंसान कहता है नहीं नहीं, मैं बड़ा पाक था, मैं बड़ा पाकीज़ा, मैं बड़ा पाकीज़ा, तो फिर ये पाकीज़ा मुआशरा है हमारा, ये हमारा मुआशरा, मुज्तमा, ये खानदान, ये पाकीज़ा है। नहीं, मेरा दिल साफ है। आपका दिल कहां से साफ है? किसने कहा साफ है? दिल तो अल्लाह तबारक व तआला जब तक गवाही ना दे उस वक्त तक सफाई और पाकीज़गी जो है वो मालूम नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने खलवत इख्तियार करने का भी जो है वो हुक्म नहीं दिया, और उससे मना किया लोगों खलवत इख्तियार न करो। तीसरे नंबर पे इख्तिलात से भी मना किया, लोगों खलवत भी इख्तियार ना करो, एक मर्द और एक औरत एक जगह पे इकट्ठे ना हो, ज्यादा मर्द और ज्यादा औरतें भी एक जगह पे इकट्ठी ना हो। आज कौन सा हमारा जो है वो फंक्शन है जहां पे लोग जो है वो मर्द और औरतें इकट्ठे नहीं होते, औरतें बन संवर कर जो है वो मर्दों के साथ जो है वो इख्तिलात नहीं करती? कौन सी शादी का फंक्शन है? मैंने बड़े बड़े नेक लोगों की शादियों को अटेंड किया, वहां जाकर पहले पता नहीं था, लेकिन जाकर पता चला, यकीन मानिए शर्म आती है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, सर के ऊपर जो है वो पगड़ियां बांधी हुई हैं, लेकिन क्या है, उन्हीं की औरतें दुपट्टे गिरे बानों में डाले हुए हैं, और जो है वो मर्दों के दरमियान आ रही है, मर्दों की इधर सीट औरतों की बैठी, इधर मर्द बैठे हुए। इंसान की निगाहें शर्म से झुक जाती हैं कि ये किन लोगों का मुआशरा है? ये मुसलमानों का है? ये 5 वक्त के नमाज पढ़ने वालों का मुआशरा है? शरीयत कहती है इख्तिलात ना करो, मर्द और औरतें आपस में इकट्ठे ना हो, मर्दों को अलहदा होना चाहिए, औरतों को अलहदा होना चाहिए। मर्दों को अलहदा हो, मर्दों को औरतों का मामला अलहदा हो, और औरतें भी पर्दे में रहें। कहां कुछ मुआशरे, कुछ खानदान ऐसे हैं, खुशी और गमी की महफिल में वो फंक्शन करते हैं तो वेटर्स भी जो है वो लेडीज का एहतमाम करते हैं।
चंद एक, वगरना कोई परवाह ही नहीं। लेकिन आप अगर किसी के घर में मेहमान गए, अगर आप किसी के घर में मेहमान गए और बैठक में आपको बिठाया गया, आप उठकर अंदर वाले दरवाजे में दाखिल हो जाएं जहां पे औरतें हैं, क्या बनेगा? क्या होगा? क्या इज्जत बाकी रह जाएगी? वो घर वाला क्या कहेगा? वो सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन खुद अपनी माँ, बहन, बेटी को लोगों के सामने पेश कर दो और वो बनी संवरी हुई हो, मेकअप किया हुआ हो, पूरा जो है वो जेवर लगाया हुआ हो, और फिर कहें मुआशरे में पता नहीं जना की वबा जो है वो क्यों आम है, मुआशरे में बुराई जो है वो क्यों आम है, ये हमने खुद पैदा कर रखी है। शरीयत ने इस इख्तिलात से मना किया, शरीयत ने इस इख्तिलात से मना किया। मर्दों और औरतों का इकट्ठ जो है वो नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए, दोनों को जो है वो अलग अलग रखा जाए, बल्कि किसी मर्द का किसी औरत को हाथ नहीं लगना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ला उसाफिहुन निसा, औरत ने कहा रसूलल्लाह हमसे बैत लीजिए, हमारे हाथ पे अपना हाथ रखकर बैत कर लीजिए। आपने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के साथ मुसाफा नहीं करता, अल्लाह ताला ने मुझे औरतों के साथ मुसाफा करने का हुक्म नहीं दिया है, मैं किसी अजनबी औरत से मुसाफा नहीं करता। और हजरत आयशा या कि और दूसरी राविया बयान फरमाती हैं, मा मस्सत यदहु यद इमरातिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने कभी किसी औरत के हाथ को मस नहीं किया। आज कजन के साथ मुसाफा भी कर लो, मुआनका भी कर लो, कोई मसला नहीं है। भाभी के साथ मुसाफा कर लो, मुआनका कर लो, कोई मसला, भाभी है। किसने कहा है इसकी इजाजत है? किसने कहा? शरीयत तो कहती ये मौत है, और हम कहते नहीं इजाजत है, कोई नहीं, अपने घर का फर्द है, देर से आया है, कोई बात नहीं, मिल लेने दीजिए। फिर जब घर में तबाही और बर्बादी नाज़िल होती है, फिर इंसान जो है वो चीखता है, ये क्या होगा, इसकी गैरत कहां चलेगी, ये बेगैरत था, ये फुला था, ये फुला था। नहीं, गैरत उसके सरबराह की खत्म हुई जब उसने ये सारे कामों की जो है वो खुद इजाजत दी। गैरत उस घर वाले की खत्म होकर रह गई है जब वो इजाजत देता है कि घर की औरतें और मर्द जो है वो बरहना होकर जो है वो नंगे मुंह जो है वो एक दूसरे को जो है वो मिले और मुआनका करे और मुसाफा करे। शरीयत ने इससे मना की। शरीयत तो इसकी तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं सारे खत्म कर दिए। शरीयत ने कहा, कुरान मजीद कहता है, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम व कुल्लिल मोमिनाति यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। मोमन मर्दों से कह दीजिए और मोमन औरतों से कह दीजिए वो क्या करें, अपनी निगाहों को नीचा रखें, मर्द औरतों को ना देखें और औरतें मर्दों को ना देखें। ये कैसा इत्तेफाक है कि औरत का भी चेहरा नंगा है और मेकअप भी किया हुआ और जेवर भी पहना हुआ है और सामने मर्द और औरतें बैठे हुए हैं और फिर उनको हुक्म दिया जाए आप निगाहें नीची कर लें। कैसे निगाहें नीची होंगी? कौन निगाहें नीची करेगा? ये निगाहें तभी नीची होंगी जब अचानक नजर पड़ जाए, जब पहले से सारे इंतजाम किए उनको अलहदा रखा जाए, पर्दे में रखा जाए, तो फिर अचानक कभी नजर पड़ जाए तो इंसान निगाहें दूसरी तरफ कर ले। इंसान घर में दाखिल हुआ, अचानक आगे कोई औरत है, ये घर किसी और का है, तो इंसान जो है वो रुक जाता है कि ये औरत जो है वो दूसरे कमरे में चली जाए। ये जो है वो निगाहें नीची करने का हुक्म दिया गया। ये नहीं कहा गया मेकअप करके बेहतरीन खूबसूरत तरीके से औरत को तैयार करो और फिर उसका चेहरा नंगा करो और गिरेबान में कपड़ा डाल दो, हाफ बाजू जो है उसको शर्ट पहना दो और तंग लिबास पहना दो और मर्द और औरत के सामने बिठा दो और औरत को तुम भी नजरें नीची कर लो और मर्द को कहा जाए तू भी नजरें नीची कर। ये कौन सा हुक्म? ये ऐसा नहीं है। शरीयत ने नजरें जो है वो झुकाने का जो है वो हुक्म दिया। कभी अचानक नजर पड़ जाए तो नजर झुका लें। या अली ला तुत्बि नजरतन नजरा, ए अली एक नजर के बाद दूसरी नजर ना डाला करो। फइन्न लकल ऊला वलैसा लकत सानिया, पहली नजर अचानक जो पड़ गई है उसकी इजाजत है, दूसरी नजर की इजाजत नहीं है। मैं जी घंटों बात कर लेता हूं अपनी कजन से, वो मेरी मंगेतर है जी, मेरी शादी होने वाली, मैं उसको जांच पड़ताल करना चाहता हूं, वो जांच पड़ताल शादी से पहले हो जाती है और फिर जब शादी होती है दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन महीने बाद 2 महीने बाद तलाक हो जाती है, इसलिए कि वो खूब जान चुके हैं। जो जानते नहीं उनकी जिंदगियां खूबसूरत गुजरती हैं और जो पहले जान चुके होते हैं उनका शादी के बाद जांचने पड़ताल करने का कोई मौका ही बाकी नहीं रहता, इसलिए वो सारा मामला जो है वो धड़ाम से गुजर गया। आज 60%, 70% लोगों की शादियां बर्बाद हैं, तलाक हो जाती है। किस वजह से? कि वो सारे मामला तो पहले हल कर चुके होते,
اب شادی کے بعد کیا کرنے والا باقی؟ لہذا شادی کے بعد کوئی زندگی میں کوئی چاشنی اور کوئی لذت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اس لیے وہ معمولی سی بات کے اوپر طلاق دیتا اور جان چھوٹ جاتی۔ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس تباہی اور بربادی کو ہم نے خود جو ہے وہ خریدا ہے، خود جو ہے وہ گھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور زمانہ جاہلیت میں کوئی غلط حرکتیں کرتا رہتا تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور سارے کام منع کر دیں، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ زنا کی اجازت دے دیں، یہ تو ہم بھی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ چیخ اٹھیں گے، یہ کیا کہہ دیا، یہ تو بڑے جرم کی بات ہے۔ چاہے باقی تمام اسباب ہم خود مہیا کرنے والے ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے ہی والدین کو میں جانتا ہوں، دیکھا ہے میں نے، کوئی پرواہ نہیں، بیٹے اور بیٹیاں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اجنبی جو نہیں جانتا ہے وہ آدمی بات کر لے، بے غیرت، یہ عجیب انسان ہے، اس کو غیرت نہیں ہے، اس کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے، اپنے کزنوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جو مرضی کر لو، وہ اجازت ہے، وہ غیرت میں بے غیرتی نہیں ہے۔ لیکن ایک اجنبی آدمی جو نہ جانتا ہو وہ کر لے تو ہمارے نزدیک غیرت کا معیار جو ہے وہ اتنا رہ گیا۔ کہا نہیں، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام بھی لپ کے اس کو پکڑیں اور اس کی زبان کو روکیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے میں ٹھہر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے قریب بلایا، اس کو قریب بلا کر کہا جو تو پسند کرتا ہے یہ عمل، کیا اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا معاذ اللہ یا رسول اللہ، کیسے میں پسند کرتا ہوں؟ کہا جس عورت کے ساتھ تو یہ کام کرنے کی خواہش کرے گا وہ کسی کی ماں نہیں ہو سکتی، کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، کسی کی بہن، کسی کی پھوپھی اور کسی کی خالہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل جو ہے وہ ڈر گیا کہ یہ میں نے کیا کہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وحسن فرجہ، اس کے سطر کی حفاظت فرما، یا اللہ وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ پھر وہ صحابی کہتا ہے کہ ساری زندگی میرے دل کے اوپر ایسا کوئی برا خیال جو ہے وہ نہیں آیا، اللہ نے مجھے پاک اور صاف کر دی۔ شریعت تو ہمیں اس کا حکم دیتی۔ لیکن آج 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے، گورنمنٹ نے جو ہے اداروں نے، مقتدر اداروں نے چھٹی کر رکھی ہے، نام دے دیا شب برات کا بھی کہ شب برات ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی اگر چھٹی کرتے تو شور مچ جاتا، لیکن ساتھ میں شب برات کا کہہ دیا، بھی شب برات کو بھی شامل کر لیں۔ پھر کیا ہے، شب برات میں کس نے کہا چھٹی کرتے ہیں؟ شب برات میں یا ویلنٹائن ڈے میں کس نے کہا چھٹی کرتے ہیں؟ دین کا نام لے دیا شب برات۔ کیا اسلامی شریعت میں صرف شب برات فضیلت والا دن ہے؟ یہ تو فضیلت والا دن ہے ہی نہیں۔ آج کا بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے رات تہجدیں پڑھی اور کھانے بنا کر جو ہے وہ تقسیم کیے اور آتش بازیوں کے مظاہرے کیے ہیں، یہ ہماری شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ کوئی صحیح حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ آج کی رات میں تہجد پڑھنی چاہیے اور آج کا روزہ رکھنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ وقت ہو گیا، بس 2-3 منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ آج کے دن میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے یا رات کو تہجد پڑھنی چاہیے یا کھانے بنا کر تقسیم کرنی چاہیے یا صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغرب سے لے کر فجر تک جو ہے وہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور سب کچھ بانٹتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی تمام روایات ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، لوگوں نے گھڑ کر اپنی طرف سے جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ 15 شعبان کی رات کو تہجد بھی پڑھو، دن کا روزہ بھی رکھو، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے اور اس رات میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے جو حدیثیں گھڑ گھڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ موضوع حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے لیکن غلط حدیث ہے۔ تو جو غلط حدیثیں ہیں اور صحیح نہیں ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی، اگر یہ فرض کر لیں فضیلت والا دن بھی ہو تو پھر فضیلت والے دنوں میں ہم چھٹی کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا جمعے کا دن کتنا فضیلت والا ہے، ہفتے کی عید ہے، جمعے میں ہمارا عظیم اجتماع ہوتا ہے، سکول والے، کالج والے، آفس والے سب جانتے ہیں 12:30 بجے چھٹی ہوتی، 12:30 سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے کوئی چھٹی دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کا جمعہ ضائع ہوتا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر، وہ داڑھی رکھی ہو، وہ نمازی ہو، وہ بے نمازی ہو، وہ جیسا بھی ہو، وہ 12:30 سے پہلے چھٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ دین سے محبت ہے؟ شب برات کو چھٹی کر دو اور جمعے کی چھٹی نہیں ہے۔
21वीं रात रमजान में आती है, 23वीं राती आती है, 25वीं, 27वीं, 29वीं आती है, ताक रातें, साल भर की रातों से अलल इतलाक सबसे अफजल रातें हैं। उस दिन भी छुट्टी होती है। रमजान का पहला दिन आता है, तरावी का एहतमाम करना है, सहरी का एहतमाम करना है, सारे मामूलात से हटकर एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। इस्लाम का अजीम दिन है, कौन छुट्टी करता है? पहला जुमा आता है रमजान का, आखिरी जुमा आता है, कौन छुट्टी करता है? कोई छुट्टी नहीं करता। ये शैतान ने जितने गलत काम है वो सारे मुज़य्यन कर दिए। शब बारात हमारी शरीयत में तसव्वुर नहीं है, गलत है। वो गलत काम को अप्रोच देने के लिए जब वो छुट्टी कर दो, मनाओ भी, खूब मनाओ, और उसका नाम दे दिया और बहाना पीछे वैलेंटाइन डे का है। वैलेंटाइन डे आप जानते हैं सारा, बाकी मेरी सारी तमहीद उसी की वजाहत कर रही है कि एक अजनबी मर्द, एक अजनबी औरत गुलदस्ता लेकर जो है वो खड़ा हो जाए और जाकर जो है वो पेश करे कि आज जो है वो मोहब्बत का दिन है, आज इश्क का दिन है, आज ईद मोहब्बत है, ईद इश्क है। इसी का ये नतीजा है कि हमारे अखबारात और जरायद जो है वो भरे पड़े हैं। आज फलां मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना दिया, आज फलां ऑफिस में, ऑफिस के बैठने वाले चौधरी ने अपनी सेक्रेटरी के साथ जो है वो मुंह काला कर लिया, आज फलां क्लिनिक में डॉक्टर ने जो है वो फलां अपनी मरीजा के साथ मुंह काला कर लिया। ये भरे पड़े अखबारात, ये इसी का नतीजा है, इसी बेहयाई और इसी बगैरती का नतीजा है जो हमने खुद दे रखी है। आखिर क्या हरज है जी, आखिर क्या हरज है? वो दिन कोई नहीं है, कहते नहीं हम तो मियाँ बीवी मोहब्बत का इजहार करना चाहते, माँ बाप मोहब्बत का इजहार करना चाहते, बेटा बेटी जो है वो आपस में मोहब्बत कौन करता है? बेटा बेटी और माँ बाप और बीवी से मोहब्बत करने के लिए साल में कोई दिन नहीं, इंसान किसी दिन में मोहब्बत का इजहार करता ही नहीं। उनके साथ नहीं है, ये गैर महरमों से मोहब्बत का दिन है। इस दिन में जो है वो गैर महरम लोगों से मोहब्बत का इजहार जो है वो किया जाता है, जो बगैरती है, जिसका नतीजा जना के ऊपर जाकर जो है वो खत्म होता है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला किसी गुनाह के ऊपर इतनी ज्यादा गैरत में नहीं आते, और अल्लाह से बढ़कर कोई गैरत खाने वाला नहीं, जितनी गैरत अल्लाह तबारक व तआला को किसी इंसान के दूसरी औरत के साथ ज़िना करने से होती। ये सारी बुराई और सारी बेहयाई ये हमने खुद जमा कर रखी है। जब तक हम वापस पलटने की कोशिश नहीं करेंगे, ये बगैरती हमारे दरमियान से खत्म नहीं हो सकती, और ये तबाही और बर्बादी का पेश खैमा है, और उम्मतें तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, और उसके ऊपर नेले पे देले का काम जो है वो मोबाइल ने कर रखा है। उसके जरिए से जो गंद खिलाया जाता है वो किसी से मख्फी नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को, हमारी सोचों को, हमारी फिक्र को, हमारी बेटियों की फिक्र को, हमारी औरतों की फिक्र को अल्लाह ताला जो है वो पाक और साफ कर दे। हमें पाकीज़ा ज़हन के साथ दीन को तस्लीम करके दीन के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए, और ऐसी बेहयाई और बुराई के कामों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।